جی ہم اب ایگزامن کر رہے ہیں. لیگل اوپینین ہمیں بھیجا ہمارے دوست محمد جاوید اقبال صاحب نے. ان کے لیے پہلے ایگزامن کر رہے ہیں جو ان کا اوپینین ہے. ایک تو لیٹر ہیڈ بنا لیتے یہ ٹھیک ہے, بٹ یہ بھی دس نتھنگ رانگ ود یہ جو آپ نے فرام دا ڈیسک آف جو لکھا ہوا اچھا طریقہ. ریفرنس نمبر سب سے اوپر آتا ہے. لکھنے کا نارمل طریقہ ڈیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ دن لکھا جاتا ہے 30th of January 2024. اپروپریٹ طریقہ یہ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ, بٹ ریفرنس نمبر اوپر لکھتے ہیں. MJI اچھی بات ہے, آپ اپنا نام لکھتے ہیں. ADV لکھنے کی ضرورت تھی. نو یو سے FK فرخندہ خان F خان یا کو اس طریقے سے. ریفرنس نمبر لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے لکھیں کہ وہ اگر آپ کو کوئی بندہ لکھ کے ہی بھیج دینا کہ ریفرنس نمبر یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ معاملہ کیا ہے. آپ نارملی فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں Q&A قیوم اینڈ ایسوسیٹس فرم /MAQ یعنی محمد احمد قیوم /فرخندہ خان /OPW اوپینین -2024-01. سال میں وہ آپ سے اور بھی لے سکتی ہے. اس سے یہ مجھے پڑھنے سے پڑ جائے گا کہ قیوم اینڈ ایسوسیٹس کا ہے اور محمد احمد قیوم نے کیا ہوا ہے, میں نے کیا ہوا ہے, شمائل نے نہیں کیا ہوا, میرے ایسوسیٹ نے. وہ اگر کرے گا وہ شمائل کا لکھے گا وہاں پہ ود F خان. اس سے پتہ چل جائے گا فرخندہ خان کا اس نے کیا /OPW01. وہ ریفرنس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ 2024 کے اندر آپ کا جو پہلا اوپینین تھا. دیٹ از وائی یو گیو ریفرنس نمبر, تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. ٹھیک ہے, ہر دفعہ سارا نہ لکھیں. لیگل اوپینین ریگارڈنگ فیملی ایشوز, آپ ساروں نے ایک ہی غلطی کی ہے. سب سے پہلی کہ فرخندہ خان ہی آپ کی کلائنٹ فرخندہ خان ہے, اس کے نام کے اوپر بننا چاہیے. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں کے اوپر دائیں ہاتھ کے اوپر آپ لکھیں گے پریولیجڈ اینڈ کانفیڈینشیل. پریولیجڈ اس لیے لکھیں گے کہ اٹارنی کلائنٹ پریولیج اس کو لگے اور اس کو کسی کورٹ میں نہ استعمال کیا جا سکے. اوپینین اگر لیک ہو جائے دوسری پارٹ سائڈ کے اوپر, یا اس میں ایڈمیشنز اور چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں, اٹارنی کلائنٹ پریولیج لکھا ہوا ہے QSO میں, آپ اس لیے لکھتے ہیں اوپر کے وداؤٹ پریجوڈس نہیں, اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل اینڈ پریولیج. پریولیج کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وکیل اور کلائنٹ کے درمیان گفتگو ہے. اس کی بہن سے اگر آپ کریں گے تو پھر شاید پریولیج اٹیچ نہ ہو. کلائنٹ آپ کا کوئی اور ہے, تو اٹ از ونس اگین امپورٹنٹ کہ آپ ڈیفائن کریں کون سا ہے کلائنٹ. دوسرا, آپ سارے دوستوں نے یہ غلطی کی ہے کہ آپ ڈاک کے ذریعے بھجوا رہے ہیں. انہوں نے آپ کیسے بھیج رہے ہیں, پراؤڈلی لکھنا چاہیے یہاں پہ تھرو ای میل یا واٹس ایپ, یا اگر اس کے والدین کا پتہ لے کے ادھر آپ بھیج سکتے ہیں. اس کے پتے کے اوپر آپ بیوی کے گھر پہ نہیں بھیجنا, کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے اور وہاں پہ قتل و غارت ہو جائے گا اگر آپ نے اس پتے کے اوپر بھیجا. تو ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے کرنا ہوتا ہے. ویسے یو کانٹ جسٹ گو انٹو اٹ بیکاز اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. مس فرخندہ خان اچھی بات ہے. کئی جگہ پہ مس فرخندہ, اس کے 3 بچے ہیں کہ نا مس فرخندہ خان, اس کو شادی سے پہلے لکھ رہے ہیں, تو MS کا لکھنے کا مطلب ہوتا ہے. ویسے تو آپ کو مسز لکھنا چاہیے انلیس وہ انسسٹ کرے کہ مجھے مز لکھو. یہ ٹھیک ہے, مز ہوتا ہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں, مس بھی ہو سکتے ہیں, مسز بھی ہو سکتے ہیں. گلبرگ کا سبجیکٹ لیگل کنسرننگ اے میٹنگ on Ithna relating to the incident that occurred last night with your sister who was slapped by husband Khalik Hussain. As per your instruction. اچھا, آپ نے شیعہ سنی والی چیز نہیں ٹچ کی ہوئی بائی دا وے. اس کے اندر آپ کو میں پچھلا کہہ رہا ہوں بھائی, آپ کے اس کے اندر یو نیڈ ٹو, بیکاز اس کے اوپر کیس لا بدل جاتا ہے بچے کی کسٹڈی کے اندر. آئی کیئرفلی پرسوڈ, یہ آپ نے اس دن بھی غلطی کی تھی اور دوبارہ پرسوڈ نہیں ہوتا جی, پروزڈ ہوتا ہے. PERUP. پرسوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے فالو اپ کیے ہیں. خیر پرسوٹ بھی ہو سکتا ہے, پرسوٹ کا ورڈ ہی غلط ہے یہاں پہ. ایگزامنڈ دا فیکٹس شیئرڈ ود می. نارملی پروزڈ کا PERUSCD کا مطلب ہوتا ہے میں نے کاغذات پڑھے ہیں, آئی ہیو لکڈ ایٹ دم. اور نارملی وہ پروز آپ پڑھتے ہیں کہ کاغذات کو, پرسو تو نہیں کیا آپ, فیکٹس کے پیچھے تو نہیں بھاگے, یا اس کی طے کے اندر آپ کہنا تو یہ چاہ رہے, کہنا چاہیے آئی ہیو ایگزامنڈ, لفظ غلط استعمال ہوا ہوا ہے. Who was slapped by the, I've carefully examined the facts shared with me during the course of the law and accordingly سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ I've the facts and the law. وہ آپ سے قانون پوچھنے آئی ہے, کہانی فیکٹس نہیں پوچھنے کے لیے آئی.
आई हैव एग्जामिन्ड द फैक्ट्स एंड द लॉ एप्लीकेबल, उस पर कानून क्या लागू होता है, फिर मैंने अपना ओपिनियन बनाया। आप कह रहे हैं मैंने सिर्फ आपके फैक्ट्स देखे और मैं उसके ऊपर ओपिनियन बना के दे रहा हूँ लॉ का। सो ये आई मीन ओवरऑल इट्स अ गुड ओपिनियन, बट ये अकॉर्डिंग टू रक्षंदा खान शी वांट्स टू एंड इन मैरिज ड्यू टू बीइंग स्लैप्ड बाय हर हस्बैंड लास्ट नाइट। और दूसरा ये कल ही किया है, कूलिंग ऑफ पीरियड आपने अपने क्लाइंट को देना है कि नहीं, सोचना है कि नहीं, ये चीज़ ये इशू भी एक आएगा, बट उसको जल्दी है, उसने ओपिनियन आपसे फ़ौरन मांगा तो आप बना के दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सारे शी ये आप अपॉस्ट्रफी एक दो और जगह पे भी यूज़ किए, शी अपॉस्ट्रफी एस नहीं है, ये दोस्तों को आप खाते नहीं लिख रहे, इट इज़ अ वेरी फॉर्मल डॉक्यूमेंट। शी इज़ प्रेजेंटली प्रेगनेंट, शीज़ नहीं होता, शी इज़ प्रेजेंटली प्रेगनेंट एंड मस्ट ऑब्जर्व एट लीस्ट until she is delivered, she has delivered, she is presently pregnant, must observe क्या at least, must observe क्या देखा जाए उसको, क्यों उससे पहले क्यों नहीं हो सकते, मार खाती रहे वो जाके वहाँ पर। आप सेपरेशन का कह सकते हैं, what should she observe, इद्दत आप कहना चाह रहे हैं कि आपके इसके बाद व्हाट शुड शी ऑब्जर्व, मसला क्या, मुझे समझ नहीं आई आपने कहा क्या। क्यों अदरवाइज ये होगा कि वो तो उसी वक्त उसको निकाल बाहर करेगा, क्यों और उसकी डिलीवरी का क्यों एक थप्पड़ मारा 15 साल के अंदर, तो उससे क्या, उसका मतलब है कि वैसे इसने शायद पाँच आगे से मारे, और वो यहाँ पे लड़कियाँ नहीं मौजूद, और देखें रिकॉर्ड हो रहा है वगैरह, हार्मोन्स ऊपर नीचे वैसे भी हो रहे होते हैं, उसने पकड़ के, इसने उसको पकड़ के प्लेट मारी होगी, उसने आगे से थप्पड़ मार दिया होगा, हो भी सकता है। क्या आई अंडरस्टैंड आप उसको हेल्प आउट करने की कर रहे हैं, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर ओपिनियन। आप ये गुफ्तगू के अंदर कह सकते हैं, आपने पीछे ये लिख दिया, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कि इलेजिटिमेट ये करके शी हैज़ नॉट मेंट मेयर क्लेमिंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी लीगल रेमेडी। किस चीज़ का, आप तो मेन नुक्तों के ऊपर आएँ, मेन सवाल का जवाब दें। क्या सवाल है कि वो क्या चीज़ें कर सकती है, आपका जो इसका स्ट्रक्चर है वो आई मीन आगे जाके आप ठीक कर लेते हैं, मगर इधर फैक्ट्स के अंदर आपने ये नहीं लिखना कि शी में नो लीगल रेमेडी, ये वो चीज़ें, वो तो जहाँ पे नीचे बात हो रही है बॉडी में बात करें। अभी तो आप ऊपर फैक्ट्स ने रेट करेंगे, ये चीज़ें आपने ओपिनियन का भी वहाँ पे लिख डाला है इसके अंदर, खास तौर पर मेयर क्लेमिंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट लीगल रेमेडी, ये चीज़ नीचे लिखनी थी बॉडी ऑफ द ओपिनियन में, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज़ या तो आप ओपिनियन का सारे जवाब पहले देते, इस जगह के ऊपर लगता है आपने बाद में ऐड किया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला ये जो चीज़ है उसके अंदर मेयर क्लेमिंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट लीगल रेमेडी, वो बॉडी में होनी चाहिए थी नीचे, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स आप लिख रहे हैं। शी इज़ प्रेजेंटली एंड एट लीस्ट ये करके। थर्ड वन इज़ टू बी डिलीवर्ड इन द नियर फ्यूचर फ्राम वेडलॉक। कैसे ये कहाँ से आ गई, आपको उसने बहन से आपने बात नहीं की तो आपने कह दिया इट इज़ रिवील्ड दैट योर सिस्टर हैज़ डेवलप्ड सेवियर हेट्रेड एंड अवर्जन अगेंस्ट हर हस्बैंड, ये उसने आपको कहा आपकी उस बीबी ने, तो ये आपने खुद अज्यूम कर लिया। उसने कहाँ पे उसने आपको कहा कि आपका ख्याल में उसको नफ़रत होनी चाहिए ये चीज़, इट वॉज नॉट इन द फैक्ट्स, इट वॉज नॉट इन द फैक्ट्स। आप अभी फैक्ट्स ने रेट कर रहे हैं जो कि आपको बताए गए, आप उसी के ऊपर रहेंगे। अगर वो आपको कहती है, या आप ये कह सकते हैं कि इफ़ शी हैज़ नाउ डेवलप्ड सेवेल असर्शन, और वो भी फिर बॉडी के अंदर वंस अगेन नीचे आना चाहिए था, इफ़ शी हैज़ डेवलप्ड ये करके, इफ़ शी फील्स दैट इस लेवल पे आ गई और अगर वो असर्ट करेगी तो उसको बीच में खुला मिल जाएगा, या शी कैन प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर मैटर। सबसे पहली गलती ये नज़र आ रही है कि फैक्ट्स के साथ जहाँ पे आप लिख रहे हैं उस पर आप साथ ही कॉमेंट्री करते जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट। पहले आपने कहना है हमें ये फैक्ट्स पता हैं, ये कागजात दिए, इनके मुताबिक ये सवाल है जिसका एक एक करके मैं जवाब दूंगा, और उसके अंदर जहाँ पे डिस्कशन हो रही है वहाँ पे आप ये डालेंगे, और ख़ुद अज्यूम कुछ नहीं करेंगे कि हेटरेड हो गया है नहीं हो गया। वो अगर कहेगी आई हैव डेवलप्ड सेवियर हेटरेड, देन बाय ऑल मीन्स राइट इट,
ओपिनियन में इट इज़ कंक्लूडेड दैट नो फाइनेंशियल, कंक्लूडेड क्या मतलब आप ख़त्म हो गया, आपको क्या, शी हैज़ स्टेटेड टू यू, उन्होंने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं। कंक्लूडेड का मतलब होता है कि सारी गुफ्तगू करने के बाद अब मुझे ये बीच में चीज़ पता चली है। नो, इट शी हैज़ टोल्ड यू, तो अल्फाज आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कई जगह पे। नो फाइनेंशियल सोर्सेज, शी स्टेज इन हर हस्बैंड्स हाउस and as well, and she barely has funds to pay to an advocate. It is not understandable they have effectively been, क्या मतलब, it is not understandable that they have effectively been not understandable, क्या मतलब, समझ नहीं आ रही है इस बात को आपको, क्या नहीं समझ आई कि किस डेट से उनका ना मतलब सिचुएशन हो रही है, उनके इन द मीनवाइल उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल का क्या मतलब? आप कमेंट ही कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती मियाँ बीवी अलग कैसे, क्या वो कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं कि वो ये बात अंडरस्टैंडेबल नहीं है ठीक, कि उनकी अलग 1 साल से जब कि वो बच्चा पैदा हो, तो वो आप उसको इस जगह के ऊपर तो नहीं करेंगे। नॉट अंडरस्टैंडेबल जब आप बात कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि जी इट माइट बी, सामने से जो ऑब्जेक्शंस आएंगी दे कैन टर्न, देयर इज़ अ गुड वे ऑफ सेइंग इट। जब सामने से दूसरा मुकदमा ऑब्जेक्शंस आएंगी तो दे माइट अटैक अ कैरेक्टर स्टेटिंग कि जी बच्चा, मैं 1 साल से बीच में सेपरेटेड था और बच्चा कैसे प्रेग्नेंट, 3 महीने कैसे ये प्रेग्नेंट है। सो स्टफ़ लाइक दैट आप उस करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको तो नहीं कह सकते ना इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, और जिस अंदाज में लिख रहे हैं वो सही नहीं है। आपको लिखना चाहिए at a later stage it might become relevant कि it has been pointed out कि she is separated from her husband living in the same house, yet it has been indicated कि she is 3 months pregnant। ये भी हो सकता है कि सेपरेटेड किसी, मैं क्या कहूँ, बहुत रोमांटिक मूड में कि साल के अंदर किसी दिन वगैरह के लिए हो गए तो हो भी सकता है। अगर आप और उसके बाद कहते हैं तेनों में तेरे तो मैंने बहुत नफरत है तो उधर हो जाओ। सो यू कांट रियली सीधा अपना क्लाइंट के आप कैरेक्टर के ऊपर इस अंदाज से नहीं कर सकते। जैसे कहना है नहीं कहना है ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। दोस्ती करने की कोशिश की, नहीं दोस्ती हुई तो फिर बाद बीच में पकड़ के फिर आप हो गए तो एक ये वाली चीज़ भी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। सो आई मीन वो ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, एक चीज़ होती है जस्टिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ्स, कंट्रोल जे दबाएं तो यहाँ से ये सारे बराबर हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे ओपिनियंस में होता है। एक सिर्फ कंट्रोल दबा के जे दबाना होता है वर्ड के अंदर, और वो आपने करने की ज़हमत नहीं की। वो और अपने नंबर कटवाए जा रहे हैं, बच्चे से बोल के टाइप करवाए तो बच्चे ने भी कम अज़ कम कह देते हैं उन कंट्रोल जे कर ले यार, सीधा कर दे सारे जिस तरह। देखिए ये करना पड़ेगा। आई मीन इट्स वेरी क्लियर यू मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो उस लिहाज से इट्स वेरी, कॉपी ऑफ निकाह नामा इज रिक्वायर्ड टू बी डिटर्मिन्ड हस्बैंड हाउस, ठीक है। हर ऑप्शन एज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। हाउ डज शी एंड द मैरिज? As your sister is pregnant now, she'll have to wait. Why? She doesn't have to wait till the end of the degree. ये कहाँ से लिखा हुआ है? आपने कुछ नहीं कर लिया। Okay. देखिए आप नोटिस भिजवा सकते हैं, इफ़ेक्टिव डिलीवरी के बाद होगी, ठीक है। 2 अलग चीज़ें हैं, देयर इज अ डिस्टिंक्शन। यू कैन इशू इट राइट नाउ, हैव अ मूव आउट, बट इट डजंट मीन कि वो करने इनिशिएट नहीं कर सकती। पहला नोटिस, हाँ वो सस्पेंडेड रहेगा जब तक वो बच्चा डिलीवर नहीं होता, ये चीज़ भी आपने देखनी है इसके अंदर। सो एज योर सिस्टर इज प्रेगनेंट नाउ, शी मे फाइल, इट विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट आफ्टर शी इज डिलीवर्ड द बेबी। नोटिस आप प्रॉबली पहले भेज सकते हैं। आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस एज वेल, बट एक केस के अंदर आई डू बिलीव कि होल्ड ये किया गया था कि नोटिस फिर इफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा जिस तारीख से बच्चा डिलीवर हुआ। उससे पहले आर्ग्यू मैंने यही किया था कि जी आपका नोटिस इनफेक्टिव है, बट नॉट वेरी क्लियर, इसके ऊपर पाकिस्तान में केस लॉ नहीं मिलेगा। शी कैन गेट मनी फ्राम हर हस्बैंड फॉर हर सेल्फ एंड चिल्ड्रन बाय फाइलिंग अ मेंटेनेंस बिफोर, ये करके कब तक नहीं यार उसको पैसे, उसकी तो तलाक के बाद तो उसको पैसे नहीं मिलने लगे। तो यू नीड टू मेक दैट क्लियर। बच्चों के अलबत्ता मिल सकते हैं। कितने होंगे, क्वांटम ऑफ अलाउंस डिटर्मिन्ड बाय स्टेटस ऑफ खालिक्स एंड, ये ठीक है अंदाज़न वो कहेगी। एक मैंने आपने अंग्रेज़ी तो लिख दी लेकिन पैसे बताएं
5,000, 10,000, 35,000, 2 लाख किस तरीके से कोई एस्टिमेट दें, शी विल ट्राई टू टाई यू डाउन, तो इसका भी आपको जवाब देना चाहिए. हाउ लॉन्ग द प्रोसेस विल टेक अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो फैमिली कोर्ट विल ये करने के लिए विद इन, उसने कहा 6 महीने के अंदर अब तकरीबन होगा. लॉ में क्या लिखा हुआ है? नहीं, आपने नहीं, काम नहीं है. आपने तो ये अपने ओपिनियन में लिखा हुआ था कि 3 महीने का नहीं है और उसके ऊपर 90 दिन नहीं है और उसके ऊपर 6 महीने. आपने ओपिनियन में फिर लिखा हुआ था कि 6 महीने लगेंगे लॉ के अंदर. हाँ, बट उस कितना लगेगा टाइम अप्रॉक्सीमेटली, ये पूछ रहा है. इट्स बीन ईयर्स सिंस आई हैव डन एनी ऑफ दीज केसेस बोल, तो आप देख लेंगे साल लगेगा कितना. यार सिर्फ रेजोल्यूशन की नहीं बात हो रही है यहाँ पे. और आपने देखिए उसका तलाक तफवीज़ का जिक्र ही नहीं किया, वो आपको कंसिडर करना था. नहीं, आपने ये नहीं लिखा. आपने ये लिखा हुआ कि अगर आपको हक दिया हुआ तो आप डाइवोर्स कर सकते हैं नोटिस भेज के. कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उसको बताने की ज़रूरत है. अगर तलाक का और निकाह नामा के अंदर सिर्फ ये कह देना कि निकाह नामा बखाओगे तो पता चलेगा इज़ नॉट एडिक्वेट. यू शुड से कि निकाह नामा हम देखना चाहते हैं और अगर उसके अंदर ये राइट दिया गया है तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. इट मस्ट बी अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर योर सिस्टर डिसाइडिंग family issues in the purview of future of our children. She is also apostrophe as advised to wait until the finalization current family issues before remarrying. क्या मतलब? and choosing the someone. नुक्ता ये था कि बेटी होने की वजह से क्या अगर वो शादी करती है तो शी माइट लूज कस्टडी. वो नुक्ता आपने नहीं यहाँ पे एड्रेस किया. जनरल लॉ ये है, 1-2 जजमेंट्स ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर नहीं लाजमी उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन जनरल प्रिंसिपल ये है कि स्टेप फादर चूँकि स्ट्रेंजर होता है तो बच्ची की कस्टडी वहाँ से इसको कहते हैं देनी पड़ जाती है. ये चीज़ देखनी थी. शिया सुन्नी की फिर बात नहीं की कि बेटा किस उम्र तक उसकी कस्टडी होगी. दोनों अलहदा हो सकते. नामों से लग रहा है कि शायद हस्बैंड और बच्चे शिया मसलक से हैं, राइट. नाम भी इसीलिए मैंने इसी तरीके से सारे के सारे लिखे हुए हैं. तो ये चीज़ आपको पूछ के उसके मुताबिक करना पड़ेगा. बेटा जल्दी बीच में इफ़ यू शिया, बेटे की कस्टडी बाप के पास जल्दी जाती है रादर देन इन सुन्नी. सो ये चीज़ आपको चेक करके एडवाइस करना था उसको. ओवरऑल अच्छा है सर. आई मीन यू वर्क वेरी हार्ड एट इट एज वेल, सो गुड जॉब. बट इसको थोड़ा बहुत आप इम्प्रूव कर सकते थे. कहाँ पे? उसको ये भी वजह भी बता दिया करें ना, क्योंकि इट विल अफेक्ट द इसको कहते हैं राइट्स ऑफ द पार्टीज़, और ख़ास तौर पर बच्चों की के लिए. तो ये